اللہ مرحبا لبیک اللہ اکبر۔ یہ رات ہے اس مقدس واقعے کی جس نے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے مٹا دیے۔ وہ عظیم رات جو طائف کی وادیوں میں ملے زخموں اور آنسوؤں کے بعد آئی، جب رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرش کی بلندیوں تک پہنچی اور رحمت کا فیصلہ نازل ہوا۔ وہی رات جب جبرائیل امین اور نورانی براق اترے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر ہوا اور پھر ساتوں آسمان کھلتے چلے گئے، جہنم کے منظر دکھائے گئے، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، سدرۃ المنتہا کی حد پار ہوئی اور امت کے لیے وہ تحفہ ملا جو 50 نمازوں سے رحمت کر کے 5 میں بدل دیا گیا۔ یہ معراج کی رات یعنی 27 رجب کی رات ہے، رحمت، قربت اور انسانیت کی سب سے بلند منزل۔ تو آئیے اس مقدس سفر کو روح کی گہرائیوں سے محسوس کریں، مگر اس سے پہلے اپنے نبی سے محبت کرنے والے کمنٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں، کیونکہ ہمارے ایمان کی پہچان انہی سے ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب پر پہلی بار شب معراج کے اس نایاب واقعے کو روحانی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے اس برکت والے سفر کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل سیدہ زیب ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مکہ کی فضا اس دور میں صرف گرم اور سوکھی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی سختی اور بے رحمی گھل چکی تھی۔ دور سے دیکھنے والے کو یہ شہر امن، تجارت اور رونق کا مرکز نظر آتا تھا، مگر اس کی گلیوں کے اندر ایک اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ ہر نکڑ پر بت کھڑے تھے، بڑے بڑے، چمچماتے ہوئے، ان پر رنگین کپڑے ڈالے گئے تھے، ان کے سامنے اگربتیاں سلگائی جاتی تھیں اور لوگ سر جھکا کر ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اے منات، سنا ہے تو بیماروں کو جلد شفا دیتا ہے، میرا بیٹا بہت عرصے سے بیمار ہے، اسے شفا دے دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، بس ایک بار میرا بیٹا تندرست ہو جائے تو تیرے سامنے 100 سونے کے سکے چڑھاؤں گا۔ اے میرے بت، تو جانتا ہے کہ میں تیری راہ میں کتنا وقت دیتا ہوں، تو میری روزی ضرور بڑھا دے۔ ان پتھروں کو شہر کی عزت، بڑپن اور طاقت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، مگر یہی پتھر جب انسانوں کے دلوں میں اتر آئے تو رحم، انصاف اور شرم جیسے الفاظ وہاں سے اٹھتے چلے گئے۔ جو کوئی ان بتوں پر سوال کرتا یا یہ کہہ دیتا کہ ان پتھروں نے آج تک مجھے کچھ نہیں دیا، اس کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی جاتی، اس کے راستے بند کر دیے جاتے، اس کے لیے بازاروں کے دروازے بند ہو جاتے اور لوگ اسے ایسے دیکھتے جیسے وہ کوئی گناہگار نہیں بلکہ کوئی بیماری ہو۔ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے ہر مسلمان اپنے قدم گن گن کر رکھتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک بھی لفظ، ایک بھی نظر، ایک بھی سانس اس کے لیے مصیبت کا پیغام بن سکتی ہے۔ بازاروں میں ظلم کا مزاج اور بھی کھل کر نظر آتا تھا۔ وہاں صرف سودے نہیں ہوتے تھے، وہاں عزت اور ذلت کے فیصلے بھی ہوتے تھے۔ اگر کوئی آدمی بتوں کی تعریف کرتا تو اسے سب سے عمدہ چیز دی جاتی، مگر اگر وہی آدمی کہہ دیتا کہ وہ بتوں کو نہیں مانتا تو اس کے لیے ہر چیز حرام سمجھ لی جاتی۔ ایک روز ایک بوڑھا آدمی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور جس کی آنکھوں میں تھکان صاف جھلک رہی تھی، پانی کی تلاش میں بازار پہنچا۔ اس نے بس اتنا کہا، بھائی مجھے تھوڑا پانی دے دو، پیاس سے حلق سوکھا جا رہا ہے۔ دکاندار نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، پانی تبھی ملے گا جب تو بتائے گا کہ تو کس دین پر ہے۔ بوڑھے نے گردن جھکا کر جواب دیا، ان پتھروں نے آج تک مجھے کچھ نہیں دیا، اس لیے اب میں ان کو بھی کچھ نہیں مانتا۔ یہ سنتے ہی دکاندار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے پانی کا مٹکا آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے کھینچ لیا اور بولا، تو پھر یہ پانی تجھے نہیں دوں گا۔ یہ شہر کسی اور دین پر نہیں بلکہ بتوں کے دین پر ہی چلے گا۔ پاس کھڑے لوگ ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، اسے یہاں سے بھگا دو۔ بوڑھا آدمی خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس کی جھکی ہوئی پیٹھ اور زیادہ جھک گئی تھی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر مکہ کے بازار میں اس وقت کسی کو آنسوؤں کی قدر نہیں تھی۔ مکہ کی راتیں سکون کی نہیں بلکہ ڈر کی امانت ہوتی تھیں۔ جیسے ہی اندھیرا اترتا، گلیوں میں سناٹا چھا جاتا، مگر اس سناٹے کے اندر ظلم کی آہٹ چھپی رہتی۔ کبھی کسی گھر کے دروازے پر پتھر پھینکے جاتے، کبھی کسی کھڑکی پر لاٹھیاں ماری جاتی اور کبھی کسی گلی سے چیخ کی آواز اٹھتی۔ کئی گھروں میں بچے ڈر کے مارے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے اور مائیں انہیں سینے سے لگا کر چپ کرانے کی کوشش کرتی۔ باہر سے آواز آتی، یا تو ہمارے بتوں کو مانو یا یہاں سے نکل جاؤ۔
ये आवाजें सिर्फ धमकी नहीं थीं, बल्कि एक ऐलान थी कि इस शहर में इंसाफ का नहीं, ताकत का कानून चलता है। कई लोग रातों रात अपना घर छोड़कर किसी और जगह चले गए और कई लोग रह गए, मगर रहकर हर रोज टूटते चले गए। मक्का की एक तंग गली में एक दिन एक कुरैश सरदार की घमंडी बीवी अपनी सहेली के साथ खड़ी बातें कर रही थी। उसके लिबास से रईसी झलकती थी और चाल में घमंड। दोनों के चेहरे पर हंसी थी। बातों बातों में सहेली ने इधर उधर देखकर आवाज धीमी की और कहा, क्या तुम्हें खबर है, तुम्हारे घर काम करने वाली रुमैसा, वो भी उस नए के दीन को मानने लगी है। ये सुनते ही सरदार की बीवी के चेहरे की रंगत बदल गई। हंसी एक झटके में गायब हो गई और उसकी आंखों में गुस्से की लपट भड़क उठी। वो तीखे लहजे में बोली, ये क्या कह रही है तू? मुझे बता, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। वो हमारे भूतों को कहती है कि बुत कुछ नहीं कर सकते, वो मिट्टी के बने हैं। सरदार की बीवी ने ठुड्डी जरा ऊपर उठाई, जैसे अपने घमंड को और ऊंचा कर रही हो। उसके होंठों पर एक सख्त सी मुस्कान उभरी और वो ठंडे मगर जहरीले लहजे में बोली, तो फिर उसे मजा चखाना पड़ेगा, ताकि उसे पता चल जाए कि हमारे घर में रहकर हमारे बुतों से मुंह मोड़ने का अंजाम क्या होता है। उसकी आवाज में कोई शोर नहीं था, मगर उसके हर लफ्ज में सख्ती और जुल्म की धमकी साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन सूरज और भी ज्यादा सख्त था। हवा जैसे झलकर चल रही थी। मक्का की गलियां इतनी तप चुकी थीं कि उस पर खड़ा होना मुश्किल था। रुमैसा काम के लिए आई तो आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। चक्की अपनी जगह रखी थी, मगर कोने में रखा रहने वाला पानी का मटका वहां नहीं था। उसे उठाकर कहीं और रख दिया गया था, शायद जानबूझकर, ताकि प्यास की एक बूंद भी पास न रहे। घमंडी औरत आंगन के एक तरफ खड़ी थी। उसकी निगाहें हर पल नौकरानी पर टिकी हुई थीं, जैसे वो सिर्फ उसके हाथों की हरकत नहीं, बल्कि उसकी सांसें भी गिन रही हों। नौकरानी चक्की के पास बैठ गई। उसने दुपट्टा ठीक किया, गहरी सांस ली और चक्की घुमाने लगी। चरर चरर पत्थरों की आवाज आंगन में गूंजने लगी। कुछ ही देर में उसके होंठ सूखने लगे, गला जलने लगा, पसीना उसके माथे से टपक कर जमीन पर गिरने लगा और चक्की पर पकड़ कमजोर हो गई। घमंडी औरत जोर से चीखी, आज फिर सुस्ती? काम नहीं हो रहा तो घर बैठो, हम खैरात खाना नहीं चलाते। तुमने तो तमाशा लगा रखा है। बीबी, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, प्यास से गला सूखा जा रहा है। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं सारा काम झटपट कर दूंगी। क्यों दूं तुझे पानी? तूने तो हमारे दीन से, हमारे बुतों से मुंह मोड़ लिया है। तू हमारे बुतों की तौहीन भी करती है। ना तो तुझे पानी दूंगी और न ही तुझे गंदुम दूंगी। अब जा, भूखी मर। ऐसा ना कहिए बीबी, मैंने आपके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने मेरी छाती का दूध पिया है। मैंने तो बुतों पर अपना सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन बुतों ने मेरी कोई दुआ कबूल ना की। मैं कैसे उनको खुदा का दर्जा दूं जो खुद मिट्टी से बने हैं। तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने खड़े होकर मेरे दीन को, मेरे खुदाओं को झूठा बोलती है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? भाग यहाँ से। दोबारा अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बीबी, मैंने सालों से तुम्हारे बच्चों की खिदमत की है। दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे दर पर मत आना, वरना तुझे 100 कोड़े की सजा दूंगी। मेरे से जबान मत लड़ा, वरना तेरी जबान खींच लूंगी। तेरा बच्चा मरे या जिए, इससे मुझे क्या मतलब। औरत के आंसू उस सख्त और तपती हुई हवा में भाप बनकर उड़ते जा रहे थे, और उस लम्हे उन आंसुओं की कोई कीमत न थी, जैसे मक्का की फिजा में दर्द के लिए कोई जगह ही न बची हो। उसका गला प्यास से सूख चुका था, सांसें बिखरी हुई थीं और दिल में उठने वाली हर सिसकी हवा के शोर में गुम हो जाती थी। उसी वक्त दूसरी तरफ काबा का वो साया खड़ा था जहां कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं गूंजती थीं, जहां तौहीद की सदा पत्थरों से टकराकर आसमान की तरफ उठती थीं। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमानबरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत ऐसी बना जो तेरी फरमानबरदार हो, और हमें हमारे इबादत के तरीके दिखा और हमारी तौबा कबूल कर। बेशक तू ही। मगर आज उसकी एक एक ईंट जैसे खामोश होकर रो रही थी, क्योंकि आज उसी इब्राहिमी पैगाम पर ईमान लाने वालों का हाल बहुत बुरा था। उसी काबा के आसपास हर दिन की तरह आज भी एक नया बुत लाया जा रहा था।
एक कबीला अपने बुत को एक खच्चर पर लादे हुए चला आ रहा था और उनके कदमों की आहट के साथ अजीब अजीब आवाजें, शोरगुल और ठहाकों की गूंज मक्का की गलियों में फैल रही थीं। लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर उस बुत को हैरत और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, जैसे यही नया बुत उनकी हर मुराद पूरी कर देगा। खच्चर की घंटियों की झनकार, लोगों की आवाजें और बाजार का शोर मिलकर एक अजीब सी धुंधली गूंज बना रहे थे। फिर उस बुत को काबा के साए में बहुत अदब के साथ रखा गया और देखते ही देखते उसके आसपास मांगने वालों की भीड़ जमा हो गई। कोई अपनी औलाद के लिए हाथ फैलाए खड़ा था, कोई रिज्क के लिए सर झुकाए था और कोई बीमारी से शिफा की दुआ कर रहा था। देख, मैंने अपना घर तेरी राह में न्यौछावर कर दिया। तुझे कितनी कुर्बानियां पेश की। अब मेरे पास कुछ कीमत ही नहीं जिससे मैं तुझे खुश कर सकूं। बस ये मीठी खजूर तेरे लिए लाई हूं। लेकिन जिस दिन मुझे औलाद की खुशी मिली, ऐ मेरे बुत, तू जानता है कि मैं तेरी राह में कितना वक्त देता हूँ। तू मेरी रोजी जरूर बढ़ा दे। मैं तेरे लिए 10 ऊंट की कुर्बानियां पेश करूंगा। तू मुझे इस बार ज्यादा मुनाफा दिलवा दे, तू ही देने वाला है। ऐ मेरे बुत, तेरी शान बहुत निराली है। अब मुझे जल्दी से एक बेटा भी दे जिसको मैं तेरी इबादत में लगाऊंगा। मक्का की फिजा उन दिनों एक ऐसे बोझिल सन्नाटे में डूबी हुई थी जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि रूह से महसूस किया जाता था। हर गली, हर दीवार और हर पत्थर किसी अनकहे दर्द की गवाही देता नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे हवा भी किसी गहरी उदासी को अपने साथ ढो रही हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उस वक्त एक के बाद एक आजमाइशों से गुजर रही थी। आपकी दावतें हक को सुनकर मक्का के बड़े बड़े सरदारों के दिलों में आग लग जाती थी। उन्हें महसूस होता था कि ये पैगाम उनकी सदियों पुरानी रिवायतों और उनके बुतों के लिए सीधा खतरा है। इसलिए हर रोज कोई न कोई नई चाल चली जाती थी ताकि इस आवाज को दबाया जा सके जो तौहीद की तरफ बुला रही थी। हर दिन काबा के सामने एक अजीब सा तमाशा लगता था। मक्का के सरदार अपने महंगे लिबास पहनकर घमंड से भरे कदमों के साथ बुतों के सामने आते थे। कोई ऊंट कुर्बान करता, कोई खुशबूदार लोबान जलाता, कोई सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाता। वे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते कि कौन अपने बुतों का ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। उनके चेहरों पर नकली आजिज़ी और आंखों में घमंड चमकता था। वो ऊंची आवाजों में अपने बुतों से मुरादें मांगते और फिर लोगों के बीच ये जताते कि वही काबा के सबसे सच्चे खादिम हैं, वही इस शहर के सबसे वफादार रखवाले हैं। हम में इतनी ताकत है कि किसी को आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं। मक्का की जो एज़ोत है सब हमारी वजह से है। मक्का वालों, देखो मैंने अपने मकबूल बुत के लिए कितनी बड़ी नजर पेश की है। इस मक्का में अगर कोई फराख दिल है तो वो मैं हूँ। बाकी लोग तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई मेरे जैसा चढ़ावा नहीं चढ़ाता। कोई कबीला कितना भी ताकत रखता हो, मगर सच ये है कि इस मक्का की सरजमी में हकीकी बाजी हमारे कबीले बनी एल की है। ताकत, दौलत, इज्जत तीनों हमारी मुट्ठी में बंधे हैं। इस शहर में बुतों के बाद हम ही सबसे अजीम हैं। इसी दिखावे और शोर में सच्चाई की हर आवाज दबाने की कोशिश की जाती थी। एक दिन हरम के पास कुछ सरदार जमा थे। धूप सिर पर थी और पत्थर तप रहे थे। उनमें से एक ने तंज भरी आवाज के साथ कहा, अगर आप अपने रब की बातों से बाज नहीं आओगे तो हम आपको और आपके साथियों को मक्का में रहने नहीं देंगे। आप हमारे बूतों को झूठा बताते हो और हमारी कौम को भटका रहे हो। आपकी वजह से लोग अपने बाप के दीन से दूर हट रहे हैं। सुनो ऐ मक्का वालों, इस कलाम के धोखे में मत आना। मोहम्मद फिर हमको हमारे दीन से दूर कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ फरमाया, मैं सिर्फ वही कहता हूँ जो मेरा रब मुझे सिखाता है और वो तुम्हारी ही भलाई के लिए है। आपकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ रहमत और सच्चाई की नरमी थी। मगर सामने खड़े लोगों के दिल पत्थर बने हुए थे। उनकी आंखों में नरमी की कोई जगह न थी। काबा के साए में खड़े बुत खामोश थे, मगर इंसानों के दिल उनसे भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। और मक्का की फिजा उस दिन भी उसी बोझिल सन्नाटे में डूबी रही जो हर आने वाले दिन के लिए और गहरा होता चला जा रहा था। मक्का के बाजार की दोपहर हमेशा की तरह शोर और गहमागहमी से भरी हुई थी। सौदागर ऊंची आवाजों में अपना माल बेच रहे थे
खच्चरों की घंटियां बज रही थीं और लोगों की भीड़ तंग गलियों में बहती चली जा रही थी। उसी भीड़ के एक कोने में एक मुसलमान सौदागर खड़ा था। कभी वही शख्स बुतों के नाम पर रेशमी कपड़े बेचा करता था। वो आवाज लगाता था कि फुल्ला बुत के नाम का कपड़ा है, इसे चढ़ावे के लिए ले जाओ, और लोग हाथों हाथ उसका माल उठा ले जाते थे। मगर इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना अंदाज बदल लिया था। आज वो नरमी से आवाज लगा रहा था, आओ आओ, ये रेशमी कपड़े ले जाओ, इन्हें गरीबों में बांटो, अपने रिश्तेदारों को तोहफे में दो, किसी जरूरतमंद के काम आओ। पहले तो उसकी आवाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग आगे बढ़ते चले गए। किसी का ध्यान उसके इस नए अंदाज पर न गया। अचानक भीड़ में से एक शख्स रुका। उसने अपने साथी से कहा, ये वही है ना जो कल तक भूतों के नाम से कपड़े बेचता था? आज इसने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। क्या माजरा है? हाँ, तुम ठीक कहते हो। कहीं वो बात तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। चलो पास चलकर उससे पूछते हैं। आज तुम किसके नाम पर अपना माल बेच रहे हो? रोज तो हबल का नाम लेते थे। मैं हम सबको बनाने वाले उस रब के नाम पर सामान बेच रहा हूँ। वही सच्चा और इबादत के लायक है। अच्छा, तो अब तुम भी हमारे बुतों को झूठा कहने लगे हो? क्या तुम्हें पता नहीं बुतों को झुठलाने वाले का अंजाम? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कल तक इन्हीं बुतों के नाम पर रोजी कमाते थे और आज उसी रोजी को झुठला रहे हो। मैं किसी की तौहीन नहीं करता, मगर सच यही है, अल्लाह ही रोजी देने वाला है और मैं अब उसी की इबादत करता हूँ। इतना सुनते ही गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। एक ने उसकी रेशमी गठरी जमीन पर पटक दी। कपड़े मिट्टी में लिपट गए। अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। उसे सबक सिखाओ ताकि दूसरे भी सीखें और हमारे देवताओं का अपमान न करें। कुछ ही पलों में चारों तरफ से लोग जमा हो गए। कोई ताने मार रहा था, कोई ठहाके लगा रहा था। फिर अचानक हाथ उठे। किसी ने उसके कंधे पर मारा, किसी ने पीठ पर, किसी ने पैरों से धक्का दिया। वह मुसलमान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पेशानी से खून बहने लगा, मगर उसकी जुबान से कोई बद्दुआ नहीं निकली। वो कांपती आवाज में बस इतना ही कह सका, मेरा रब सब देख रहा है, वो हिसाब जरूर लेगा। बाजार का शोर फिर से चल पड़ा और उस कोने में एक और खामोश जुल्म की कहानी मिट्टी में मिल गई। उस दौर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावतें हक सबसे ज्यादा जिन दिलों को चुभ रही थी, उनमें अफसोस के साथ आपके अपने करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। मक्का की एक बंद महफिल में बनु हाशिम और बनु उमैया के कुछ बड़े नाम जमा थे। सबसे आगे अब्बू लहब बैठा था, जो आपका सगा चाचा था, मगर दिल से सबसे ज्यादा दूर हो चुका था। उसके चेहरे पर सख्ती थी और आवाज में जहर। वो कह रहा था कि भतीजे का ये पैगाम हमारे बाप दादा की राह को झुठला रहा है और हमारे घराने की इज्जत को खतरे में डाल रहा है। अब्बू झल था, जो बार बार दांत पीसते हुए कह रहा था कि ये नया पैगाम हमारी रिवायतों को मिटा देगा। वलीद बिन मुगीरा अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला कि ये आवाज अगर यूं ही फैलती रही तो काबा के बुतों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उतबा और शैबा एक कोने में बैठे धीमी आवाज में सलाह कर रहे थे कि कैसे इस दावत को बदनाम किया जाए ताकि लोग डर जाएं और इस तरफ न आएं। उमैया बिन खलफ ने तंज भरे लहजे में कहा कि जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में तंग किया जाए ताकि उनकी हिम्मत टूट जाए। उकबा बिन अबी मुईत ने हंसते हुए ये भी कहा कि रास्तों में फप्तियां कसी जाएं और बाजारों में अफवाहें उड़ाई जाएं ताकि इस पैगाम को झूठा साबित किया जा सके। आस बिन वाइल ने महफिल पर नजर दौड़ाई और बोला कि हमें मिलकर ऐसी साजिशें करनी होंगी जो देखने में छोटी लगें मगर असर में बहुत गहरी हों। सबके चेहरों पर एक सी सख्ती थी और हर दिल में ये डर बैठा था कि तौहीद की ये आवाज उनके बनाए हुए तख्त को हिला देगी। उसी रात की फिजा में कई ऐसी साजिशें जन्म ले रही थीं जिनका मकसद सिर्फ एक था, हक की इस रोशनी को बुझा देना, चाहे उसके लिए कितनी ही जुल्म की राह क्यों न अपनानी पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उन दिनों एक ऐसा गम ठहरा हुआ था जो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता था। बीबी खदीजा बिनती खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा कई हफ्तों से बीमार थीं। जिस बदन ने बरसों तक मुश्किलों का बोझ उठाया था वो अब थक चुका था। कमजोरी रोज बढ़ती जा रही थी, कदमों में ताकत नहीं रही थी, मगर उनकी आंखों में अब भी वही पुरानी रोशनी थी, वही मोहब्बत और वही फिक्र जो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के लिए हुआ करती थी। वो बिस्तर पर लेटी होती, मगर दिल मक्का की गलियों में हो रहे जुल्मों के साथ धड़कता रहता। जब जब उन्हें ये खबर मिलती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ताने मारे हैं या रास्ते में तकलीफ दी है, तो उनकी आंखें भर आती। वो बहुत कमजोर आवाज में बस इतना कहती, आपको तकलीफ न पहुंचे, जैसे उनकी अपनी बीमारी से ज्यादा उन्हें आपके दर्द की फिक्र हो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा माँ के पास बैठी रहती, उनके लिए पानी लाती, पेशानी सहलाती, मगर बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की निगाह बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे हर पल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौट आने की राह देख रही हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पास बैठते तो वो थकी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखती और धीमे से कहती, सब्र रखिए, अल्लाह हमारे साथ है। दिन बीतते गए, उनकी कमजोरी बढ़ती गई, हाथों की रगें उभर आईं, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई, मगर दिल की मजबूती वैसी ही रही। वो आखिरी दिनों में भी अपनी बीमारी का जिक्र कम और आपकी मुश्किलों का जिक्र ज्यादा करती थीं। कभी कभी उनकी आंखों से खामोश आंसू बहते, जो सिर्फ इस बात की गवाही देते थे कि उनका दिल अब भी आपके दर्द से बंधा हुआ था। फिर एक दिन उनकी सांसें बहुत हल्की हो गईं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हों। होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। बस उनकी आंखों में मोहब्बत की वही रोशनी ठहरी रही और उसी लम्हे उनकी रूह अपने रब के पास चली गई। घर में एक गहरी खामोशी उतर आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उनके चेहरे से कपड़ा हटाया, दुआ पढ़ी और आपकी आंखों से आंसू बह निकले। दफन की तैयारी हुई। बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा दिन के वक्त उठाया गया। मक्का की गलियों में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। ऐसा लगता था जैसे शहर की रूह किसी गहरे गम में डूबी हुई हो। आम दिनों की तरह शोर, सौदेबाजी और आवाजों की गूंज नहीं थी। हर कदम में एक बोझिल उदासी महसूस हो रही थी। जनाजे को उठाने वालों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल थे। आपके साथ आपके करीबी अहले खानदान और चुनिंदा साहबी थे। सबके चेहरे झुके हुए थे, निगाहें नम थीं और हर दिल में एक ही एहसास, आज वो साया उठ रहा है जिसने इस दावते हक के पहले दिन से आखिरी लम्हे तक बिना किसी शर्त के साथ दिया था। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई दिखावा नहीं, बस कदमों की आहट और दुआओं की खामोश सरगोशी थी। उन्हें हजून के कब्रिस्तान में बड़े अदब और इज्जत के साथ दफनाया गया। इस जगह को जन्नतुल मुअल्ला भी कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और हर लफ्ज में मोहब्बत, शुक्र और सब्र की गूंज थी। मिट्टी डाली गई तो ऐसा लगा जैसे मक्का की फिजा भी थम गई हो। आमुल हुज़्न यानी गम का वो साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके दो प्यारे दिल नशीन साथी आपसे जुदा हो गए। एक आपकी प्यारी जोजा मोहतरमा बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे आपके चाचा अबू तालिब। ये दोनों शख्सियत आपके लिए हर तूफान में ढाल बने रहते थे। इसके बाद मक्का की फिजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ज्यादा सख्त हो चुकी थी। कुरैश के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। गलियों में ताने, बाजारों में रोक टोक और घरों के दरवाजों पर धमकियां आम हो चुकी थीं। इसी माहौल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर मक्का के लोग हक की बात नहीं सुनते तो किसी दूसरे शहर में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। आपने ताइफ का इरादा किया, क्योंकि वहां सकीफ कबीला रहता था और उम्मीद थी कि शायद वहां दिल नरम हो। आप अकेले नहीं गए, आपके साथ आपके प्यारे सहाबी ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। रास्ते में हजरत ज़ैद ने अदब से कहा, या रसूल अल्लाह, सफर लंबा है मगर अल्लाह पर भरोसा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से जवाब दिया, ज़ैद, हमें सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। ये कहते हुए आप दोनों मक्का से निकल पड़े और तपती रेत पर चलते हुए भी दिलों में उम्मीद की ठंडक लिए ताइफ की राह पकड़ ली। ताइफ पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे सकीफ कबीले के सरदारों के पास गए। 3 बड़े लोग, अब्द, यालील, मसूद और हबीब, एक बाग के साए में बैठे थे। आपने सलाम किया और बहुत अदब से फरमाया, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ ताकि तुम एक रब की इबादत करो और जुल्म छोड़ दो। एक सरदार ने तंज से कहा, अगर अल्लाह ने आपको भेजा है तो हमारे बुतों का क्या होगा? उनकी इबादत कौन करेगा? दूसरे ने गुस्ताखी करते हुए कहा, क्या आपके अल्लाह को आपके सिवा कोई और नहीं मिला? ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, हम किसी की तौहीन नहीं करते, बस सच बयान करते हैं। मगर उनकी बातों का असर उल्टा पड़ा। तीसरे सरदार ने ऊंची आवाज में कहा,
अगर आप यही बातें फैलाते रहें तो हमारे शहर में आपकी जगह नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान से फरमाया, मैं सिर्फ वही कहता हूँ जो मेरा रब मुझे सिखाता है। उनकी आवाज में रहमत थी, मगर सामने वालों के दिल सख्त थे। उन्होंने इशारे से अपने नौकरों और आवारा लड़कों को बुलाया और कहा, इन्हें शहर से बाहर निकाल दो। अचानक गलियों में शोर मच गया। बच्चे और बदमाश इकट्ठा हो गए। कोई ताना मारता, कोई हंसता और फिर पत्थर चलने लगे। एक पत्थर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पांव में लगा, दूसरा आपकी मुबारक पीठ के पास से गुजरा। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़कर ढाल बन गए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे हुजूर, आप पीछे रहें, मैं इनको संभालता हूँ। पत्थरों से हजरत ज़ैद का सिर जख्मी हो गया और खून बहने लगा, मगर वो फिर भी आपके आगे खड़े रहे। अचानक भीड़ से एक आवाज आई, अपने नए रब के पास जाओ, यहां आपके लिए जगह नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द के बावजूद कहा, ज़ैद सब्र रखो। दोनों शहर से बाहर निकल आए और एक अंगूरों के बाग में जाकर बैठे। आपके मुबारक नालैन पाक में खून भर चुका था। हजरत ज़ैद रोते हुए बोले, ऐ अल्लाह के नबी, उन्होंने बहुत जुल्म किया। आपने उनकी तरफ देखा और फरमाया, ज़ैद अल्लाह सब देख रहा है। उसी हालत में आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर वो मशहूर दुआ की और ये कहा कि जब तक अल्लाह नाराज नहीं, कोई गम बड़ा नहीं। उसी बाग के मालिक उतबा और शैबा कुरैश के थे। उन्होंने दूर से ये मंजर देखा और दिल पसीज गया। उन्होंने अपने गुलाम अद्दास को अंगूरों की एक तश्तरी देकर कहा, अद्दास जाओ, इन्हें दे आओ। अद्दास तश्तरी लेकर आया और बोला, खाइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिस्मिल्लाह। ये सुनकर अद्दास चौंक गया। उसने पूछा, ये कलीमा तो यहाँ के लोग नहीं कहते हैं, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अद्दास ने कहा, मैं नैनवा से हूँ। आपने मुस्कुराकर पूछा, यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से? अद्दास हैरान होकर बोला, आप उन्हें कैसे जानते हैं? आपने फरमाया, वो मेरे भाई नबी थे। ये सुनते ही अद्दास की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ा और आपके हाथ पांव चूमने लगा। आप सच कहते हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। पीछे खड़े उतबा और शैबा आपस में बोले, देखो, इन्होंने हमारे गुलाम को भी बदल दिया। इस छोटे से लम्हे में जुल्म के अंधेरे में हिदायत की एक किरण चमक उठी। ताइफ से वापसी का सफर और भी भारी था। रास्ते में ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हमें यहाँ से कुछ हासिल हुआ? आपने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह के यहाँ कोई कोशिश बेकार नहीं जाती। मक्का के करीब पहुंचे तो आपने शहर में दाखिल होने से पहले पनाह चाही ताकि दुश्मन फिर नुकसान न पहुंचा सकें। मुतिम बिन अदी ने पनाह दी और अपने बेटों के साथ हथियार लेकर आपके साथ मक्का में दाखिल हुआ। घर पहुंचकर आपने राहत की सांस ली, मगर दिल में ताइफ के जख्मों की टीस बाकी थी। उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद से कहा, सब्र और दुआ ही हमारा हथियार है। ये सफर भले ही जाहिर में दर्द और तौहीन से भरा था, मगर इसमें यह पैगाम छुपा था कि हक की राह में ठोकरें भी रहमत का जरिया बनती हैं, और ताइफ का ये जुल्म आने वाली नुसरतों की पहली दस्तक था। मक्का की फिजा अभी तक ताइफ की वादी के जख्मों की खामोश गवाही दे रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जख्म थे, मगर दिल में किसी के लिए भी बदले की आग नहीं थी। आपके लहूलुहान कदमों की हर लकीर जमीन पर सब्र और रहमत की इबारत लिख चुकी थी। जब आप रात की तन्हाई में सजदे में तशरीफ लाए तो आपकी मुबारक पेशानी जमीन से लगी हुई थी और आपकी रूह आसमान से बातें कर रही थी। आपकी आवाज में दर्द भी था, मगर शिकायत नहीं। आंसू भी थे, मगर बदुआ नहीं। आप अपने रब से सिर्फ यही अर्ज कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं, और इन लोगों को माफ कर दे क्योंकि ये मुझे नहीं जानते। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि वो आग थी जिसने आसमानों में रहमत के दरवाजे खोल दिए थे। फरिश्तों की सफों में हलचल पैदा हो चुकी थी और नूर की लहरें कायनात में दौड़ने लगी थीं, क्योंकि जमीन से उठी हुई ये सदा सीधे अर्श की तरफ बढ़ रही थी। आसमानों में उस वक्त एक ऐसी खामोश हलचल पैदा हो चुकी थी जिसे जमीन की आंखें देख नहीं सकती थीं, मगर रहमत की कुदरत हर चीज को महसूस करा रही थी। फरिश्तों की सफ़ें सजी हुई थीं, नूर की चादरें बिछ चुकी थीं
और अर्श के साए में एक अजीम फैसले की तैयारी हो रही थी। हर फरिश्ता अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर था। रहमत के दरवाजे खुलने वाले थे और इंसानियत की तारीख में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो हर दौर को बदल देगा। ये वही लम्हा था जब तारीख ने ये इरादा फरमाया कि अपने महबूब को ऐसी तसल्ली और सरफराजी अता की जाए जो बेमिसाल हो और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस वक्त तक किसी भी नबी को न मिली हो। एक ऐसी सरफराजी जो पूरी उम्मत के लिए रहमत और निजात का दरवाजा बन जाए, जो जमीन और आसमान के दरमियान वो फासला जो इंसान को छोटा और मजबूर दिखाता था, अब वही फासला मिटने वाला था। अल्लाह की रहमत ने यह तय कर लिया था कि अपने महबूब को अपने करीब बुलाया जाए ताकि इंसानियत को ये बता दिया जाए कि जो बंदा सब्र और दुआ के रास्ते पर चलता है उसके लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। रहमत के उस फैसले के साथ ही कायनात के हर कोने में नूर की हरकत तेज हो गई। हवाओं ने अपनी चाल बदल ली, सितारों की चमक और ज्यादा गहरी हो गई और फिजा में एक पाकीज़ा खुशबू फैलने लगी। ये खुशबू किसी फूल की नहीं थी बल्कि जन्नत की हवाओं की थी जो जमीन की तरफ उतर रही थी। हर जर्रा इस बात की गवाही दे रहा था कि कोई अजीम सफर शुरू होने वाला है। वक्त भी जैसे अपनी चाल को थाम कर खड़ा हो गया था ताकि वो उस मुकद्दस लम्हे का गवाह बन सके। इस नूरानी तैयारी में हर चीज अपने रब के हुक्म की मुंतजिर थी और आसमानों में रहमत की लहरें उस मुकद्दस मेहमान के इस्तकबाल के लिए बिछ चुकी थीं। ये सब उस कुदरत की तरजीह थी जिसने इंसानियत की तकदीर को एक नई रोशनी देने का इरादा फरमाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तन्हा रात में अपने रब की बारगाह में सजदे में थे। आपकी मुबारक आंखों से गिरने वाले कीमती आंसू जमीन पर तशरीफ लाते तो रहमत के दरवाजों पर दस्तक बन जाते। आपके दिल में अपनी उम्मत का दर्द था और आपकी जुबान पर सिर्फ उनके लिए दुआ थी। आपको अपने रब की तरफ से आने वाली रहमत की आहट महसूस हो रही थी जिसकी शान और जलाल का फैसला आसमानों में हो चुका था। आपकी रूह को एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हो रहा था, जैसे कोई रहमत आपको अपने साए में ले रही हो। ये वही सुकून था जो सिर्फ उन्हीं दिलों को मिलता है जो पूरी तरह अपने रब पर यकीन रखते हैं। और फिर वो लम्हा करीब आ गया जब अल्लाह के उस बड़े फैसले का ऐलान होने वाला था। ये सिर्फ एक अपने सबसे महबूब नबी को बुलाने का ऐलान नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत को ये बताने का ऐलान था कि सब्र, दुआ और यकीन का रास्ता इंसान को कहां तक पहुंचा सकता है। जमीन और आसमान के दरमियान एक नया रिश्ता बनने वाला था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें अल्लाह के महबूब अपने रब की कुर्बत में पहुंचने वाले थे। रहमत के दरवाजे खुलने को थे, नूर की राहें तैयार थीं और कायनात अपने सबसे मुकद्दस मेहमान के इंतजार में सांस रोके खड़ी थी। यही वो बड़ा फैसला था जिसने इस रात को क़यामत तक के लिए रोशन कर दिया और इंसानियत की तकदीर को एक नई पहचान देनी थी। हजरत जिब्राइल अमीन आसमान की बुलंदियों से उतर रहे थे। नूर की परतें उनके चारों तरफ लिपटी हुई थीं और उनके परों से झरने वाली रोशनी मक्का की रात को दिन की तरह रोशन कर रही थी। फिजा में एक ऐसी पाकीज़ा हरारत फैल गई थी जैसे जन्नत की हवाएं जमीन को छू रही हों। हर पाकीज़ा अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था, मानो कायनात का बोझ उतर गया हो। सितारे अपनी जगह थम गए थे और चांद की रोशनी भी उनके नूर के सामने फीकी लग रही थी। जिब्राइल अमीन की आमद कोई आम आमद नहीं थी बल्कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक मुकद्दस पैगाम था जो जमीन और आसमान के रिश्ते की नई इबारत लिखने वाला था। मक्का की गलियां, काबा के साए और रात की खामोशी सब इस नूरानी मेहमान के खामोशी में जैसे सज गए थे। ये वो लम्हा था जब इंसानियत की इस्तकबाल में एक नया बाब खुलने वाला था और हर दिल के लिए रहमत की नई सुबह की तैयारी हो रही थी। जैसे ही जिब्राइल अमीन जमीन के करीब पहुंचे, फिजा में नूर की लहरें और तेज हो गईं। उनकी मौजूदगी से हर सांस में सुकून उतर रहा था। उन्होंने अपने परों को समेटते हुए मक्का की पाक जमीन पर कदम रखा। काबा के चारों तरफ नूर की एक हल्की सी चादर फैल गई और हवाओं की चाल थम सी गई। ये वही लम्हा था जब अल्लाह का हुक्म जमीन पर उतर चुका था। जिब्राइल अमीन के चेहरे पर जलाल भी था और रहमत भी। उनकी निगाहें उस मुकद्दस मकाम की तरफ उठीं जहां अल्लाह के महबूब सजदे में थे। उनके दिल में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे हर सांस के साथ ये एहसास गहरा हो रहा हो कि वो किस अजीम बंदे की खिदमत में हाजिर होने वाले हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तन्हाई में अपने रब की बारगाह में मशगूल थे। आपकी पेशानी सजदे में थी और आपकी जुबान पर दुआ के अल्फाज थे। जब जिब्राइल अमीन ने अदब से सलाम अर्ज किया तो आपकी रूह में एक मीठा सा सुकून उतर आया। आपने सिर उठाया और सामने नूर से लिपटे हुए जिब्राइल अमीन को देखा। उस लम्हे फिजा में ऐसी खामोशी छा गई
जैसे हर जर्रा सांस रोके खड़ा हो। जिब्राइल अमीन ने नरमी से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपका रब आपको अपने करीब बुला रहा है। ये पैगाम सुनकर आपकी आंखों में नमी आ गई, मगर आपके चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी फैल गई। ये वो लम्हा था जब दुआओं का जवाब आपके सामने जाहिर हो रहा था। जिब्राइल अमीन के पैगाम के साथ ही नूर की एक और लहर उतरी और सामने बुराक जाहिर होने लगा। ये नूर से बनी हुई सवारी अपनी शक्ल और हैबत में किसी आम मखलूक से अलग थी। उसकी आंखों में रोशनी की चमक थी, उसकी चाल में कुदरत का जलाल और उसकी मौजूदगी में रहमत की कुदरत थी। जैसे ही वो जमीन पर आया, मिट्टी भी सजदे में झुकती हुई महसूस होने लगी। बुराक की रफ्तार निगाह से भी तेज थी और उसकी हर हरकत ये बयान कर रही थी कि ये सफर आम सफर नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से तय किया गया एक मुकद्दस सफर है। फिजा में जन्नत की खुशबू और गहरी हो गई और सितारे जैसे इस मंजर को अपनी यादों में कैद कर रहे हों। जिब्राइल अमीन ने बड़े अदब से आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की तरफ तशरीफ लाने को कहा। उस लम्हे कायनात का हर जर्रा इस मंजर की गवाही दे रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वकार और इत्मीनान के साथ आगे बढ़े। आपके चेहरे पर सुकून था और दिल में अपने रब की मोहब्बत की गर्मी। आपके प्यारे चेहरे मुबारक का दीदार करते ही बुराक ने आपको सलामी पेश की। फिर जैसे ही आपने बुराक पर कदम रखा, नूर की लहरें और तेज हो गईं और जमीन और आसमान के दरमियान एक नूरानी रास्ता खुलने लगा। ये वो लम्हा था जब रहमत का सफर बाकायदा शुरू होने वाला था, वो सफर जो पूरी इंसानियत की तकदीर को बदल देने वाला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा चुके थे। जिब्राइल अमीन अदब के साथ करीब खड़े थे और मक्का की रात अपने सबसे मुकद्दस राज को सीने में संजोए खामोश खड़ी थी। उस लम्हे फिजा में ऐसी रूहानी हरारत थी जैसे जन्नत की हवाएं जमीन को छू रही हों। बुराक ने हल्की सी हरकत की, उसके नूरानी जिस्म से रोशनी की लहरें निकलीं और जमीन के जर्रों ने जैसे सजदा कर लिया। रहमत के इस सफर की इब्तिदा होने वाली थी। हवाओं की चाल थम गई, सितारों की चमक और गहरी हो गई और काबा के साए में खड़ी हर चीज गवाह बनने को तैयार हो गई। ये वो लम्हा था जब कुदरत ने अपनी पूरी तवज्जो इस मुकद्दस काफिले पर कर दी। जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़कर रहमत के इस सफर की शुरुआत का ऐलान किया। उनकी आवाज में ऐसा इत्मीनान था जो सीधे रूह तक उतर जाता था। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, बुराक ने अपने नूरानी कदम उठाए और मक्का की पाक सरजमीन से पहला कदम आगे बढ़ाया। उस पल ऐसा लगा जैसे जमीन और आसमान के दरमियान एक नूरानी राह खुल गई हो। हवाओं में जन्नत की खुशबू और तेज हो गई और सितारों ने जैसे इस मंजर को अपनी आंखों में कैद कर लिया। मक्का की गलियां, काबा की दीवारें और हर पत्थर इस सफर की गवाही देने लगे। ये कोई आम रफ्तार नहीं थी, बल्कि वो चाल थी जो कुदरत की तरफ से तय की गई थी। हर कदम के साथ मक्का की सरहदें पीछे छूटने लगीं और दिलों में एक अजीब सी कशिश पैदा होने लगी, जैसे कोई बुलंद मंजिल करीब आती जा रही हो। जैसे जैसे बुराक आगे बढ़ता गया, मक्का की पहाड़ियां, रेगिस्तान की लहराती रेत और तंग गालियां पीछे छूटती चली गईं। नूर की एक हल्की सी चादर इस काफिले के साथ चल रही थी और फिजा में एक मुकद्दस खामोशी थी। जिब्राइल अमीन आगे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वकार के साथ बुराक पर तशरीफ फरमा थे। आपकी निगाहों में सुकून था और दिल में अपने रब की मोहब्बत की गर्मी। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत अपने सबसे मुकद्दस मेहमान को सलाम पेश कर रही हो। हवाएं अपनी चाल बदल चुकी थीं और सितारों की रोशनी एक नूरानी रास्ता बना रही थी। ये वो सफर था जिसमें दूरी और वक्त दोनों अपनी हदें खो चुके थे और इंसानियत की तकदीर एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। मक्का की सरहदें अब पूरी तरह पीछे छूट चुकी थीं और बुराक की रफ्तार निगाह से भी तेज हो गई थी, मगर इस तेजी में भी एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे हर कदम रहमत की गोद में रखा जा रहा हो। जिब्राइल अमीन कभी आगे बढ़कर रास्ता दिखाते और कभी मुड़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अदब से निगाह उठाते। कदम में नूर की लहरें हर तरफ फैल चुकी थीं और आसमान की बुलंदियों में एक नई दुनिया की झलक नजर आने लगी थी। ये सफर सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि दिलों और रूहों का सफर भी था। हर सांस के साथ उम्मत के लिए रहमत की नई राहें खुलती जा रही थीं और कुदरत अपने जलाल के साथ इस मुकद्दस काफिले की निगाहबानी कर रही थी। जैसे ही सफर आगे बढ़ा, दिलों में एक अजीब सा यकीन और बढ़ गया कि ये सिर्फ एक रात का सफर नहीं, बल्कि क़यामत तक की रहमत का रास्ता है। बुराक की नूरानी रफ्तार ने जमीन और आसमान की दूरियों को जैसे मिटा दिया था। हर जर्रा इस बात की गवाही दे रहा था कि ये कुदरत का खुला हुआ करिश्मा है
और इंसानियत की तकदीर का सबसे मुकद्दस सफर अपनी इब्तिदा कर चुका है। कायनात अपने सबसे अजीम मेहमान के साथ इस सफर में शामिल थी और मक्का की रात अपने सीने में इस राज को संजोए धीरे धीरे पीछे छूटती चली जा रही थी। धीरे धीरे आंखों के सामने एक नया मंजर उभरने लगा। ये वो रास्ता था जो बैतुल मुकद्दस की मुकद्दस सरजमीन की तरफ ले जा रहा था। हवाओं की चाल में एक पाकीज़ा नरमी उतर आई, जैसे जन्नत की हवाएं रास्ता बना रही हों। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, बैतुल मुकद्दस की सरजमीन की पाकीज़ा रोशनी दूर से ही महसूस होने लगी, मानो वो मुकद्दस मकाम अपने मेहमान का इस्तकबाल कर रहा हो। बुराक ने अपनी रफ्तार नरमी से धीमी की और फिजा में एक अजीब सा इत्मीनान उतर आया। जब उसके नूरानी कदम जमीन पर पड़े तो ऐसा लगा जैसे मिट्टी भी सजदे में झुक गई हो। ये वही सरजमीन थी जहां हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम की यादें बसी हुई थीं, जहां अंबिया की कदमों की खुशबू हवाओं में रची बसी थी। उस लम्हे हर जर्रह गवाही दे रहा था कि कोई मामूली मेहमान नहीं बल्कि अल्लाह का महबूब इस मुकद्दस आंगन में कदम रख रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक से उतरे तो मस्जिद अक्सा की फिजा और भी रोशन हो गई। जिब्राइल अमीन ने अदब से अर्ज किया कि ये वही मुकद्दस मकाम है जहां अल्लाह के कई नबी तशरीफ ला चुके हैं। उसी वक्त मस्जिद के अंदर एक नूरानी मंजर बनने लगा। नूर की लहरों के दरमियान अंबिया की मुकद्दस जमात जाहिर होने लगी, सफ़ें सजने लगीं और हर सफ में नूर से लिपटे हुए चेहरे नजर आने लगे। कहा जाता है कि वहां सैकड़ों अंबिया मौजूद थे, जिनमें हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और बहुत से दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम शामिल थे। हर एक की निगाहों में अदब और इंतजार था, जैसे सब एक ही मुकद्दस लम्हे के मुंतजिर हों। जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपका रब चाहता है कि आज आप इन तमाम अंबिया की इमामत फरमाएं। ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वकार और इत्मीनान के साथ मिहराब की तरफ बढ़े। आपकी पेशानी पर सुकून की रोशनी थी और दिल में अपने रब की मोहब्बत की गर्मी। आपने तकबीर कही तो फिजा में ऐसी खामोशी छा गई जैसे कायनात सांस रोके खड़ी हो। तमाम अंबिया ने सफों में खड़े होकर आपके पीछे क़ियाम किया। ये मंजर नबुव्वत की सरदारी का खुला हुआ ऐलान था कि इंसानियत के तमाम रहनुमा आज उस नबी के पीछे खड़े हैं जो खातिमुल अंबिया हैं। नमाज के हर लम्हे में नूर की लहरें और तेज होती चली गईं। हर सजदा, हर रुकू और हर क़ियाम में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कायनात भी इस इबादत में शामिल हो गई हो। अंबिया की सफ़ों से उठने वाली आमीन की सदा आसमानों तक पहुंच रही थी और रहमत के दरवाजे और खुलते जा रहे थे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो फिजा में एक अजीब सा इत्मीनान फैल गया। ये वो लम्हा था जब इंसानियत की तारीख ने अपने सबसे बुलंद मंजर को देखा और ये पैगाम दे दिया गया कि रहमत, हिदायत और नबुव्वत की तारीख अब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शफकत भरे हाथों में है। नमाज मुकम्मल होते ही मस्जिद अक्सा की फिजा में एक गहरी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ नूर की सरगोशियां महसूस हो रही थीं। अंबिया की मुकद्दस जमात अदब से अपने अपने मकामात पर ठहरी हुई थी और हर निगाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी हुई थी। उसी लम्हे जिब्राइल अमीन आगे बढ़े और पूरे एहतराम के साथ अर्ज किया कि अब वो वक्त आ गया है जब आसमानों की तरफ रुख किया जाएगा। आपकी तरफ से एक हल्की मुस्कुराहट जाहिर हुई और दिल में अल्लाह के करम का एहसास और गहरा हो गया। फिजा में नूर की लहरें तेज होने लगीं और ऐसा लगा जैसे जमीन और आसमान के दरमियान पर्दे हटने लगे हों। मस्जिद अक्सा की दीवारें, मिहराब और आंगन सब नूर में डूबते चले गए और हर जर्रह गवाही देने लगा कि अब वो मंजर शुरू होने वाला है जो इंसानियत की तारीख का सबसे बुलंद मंजर बनने जा रहा है। जिब्राइल अमीन ने अपने नूरानी बाजुओं को फैलाया और फिजा में एक नूरानी रास्ता जाहिर होने लगा। ये रास्ता आम पत्थरों या लकड़ी से बना हुआ नहीं था, बल्कि नूर और रहमत से बना हुआ था, जिसकी हर पायदान से जन्नत की खुशबू उठ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान अपने दरवाजे खोल रहा हो और रहमत के फरिश्ते रास्ते के दोनों तरफ सफ़ें बांधकर खड़े हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे वकार के साथ पहला कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही आपने उस नूरानी रास्ते पर कदम रखा, फिजा में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई।
हर पायदान पर नूर की चमक और तेज होती चली जा रही थी और हवाओं में तस्बीह की सरगोशियां सुनाई देने लगीं। ये कोई आम चढ़ाई नहीं थी, बल्कि वो रूहानी उरूज था जो अब तक किसी भी नबी को ना हासिल हुआ था। जैसे जैसे ये सफर ऊपर की तरफ बढ़ता गया, जमीन की सरहदें और भी पीछे छूटती चली गईं। मस्जिद अक्सा की मुकद्दस सरजमीन अब नीचे नूर के एक हल्के से टुकड़े की तरह नजर आने लगी। आसमान की बुलंदियों से नूर की लहरें उतर रही थीं और फरिश्तों की सफ़ें दोनों तरफ खड़ी होकर सलाम पेश कर रही थीं। तभी अचानक एक ऐसा मकाम आया जहां फिजा की रंगत बदलने लगी। नूर की नरमी के बीच एक ऐसी सख्त हैबत उतरने लगी जो रूह को झकझोर देती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये कैसी जगह है? जिब्राइल अमीन ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहन्नुम की हदों में से एक हद है। फिर आपको कुछ लोग दिखाई दिए जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह बड़े और भारी थे। फरिश्ते उनके मुंह में आग के पत्थर डालते जो अंदर जाते ही पीछे की तरफ निकल जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से वजह पूछी तो अर्ज किया गया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों को नेकी की नसीहत करते थे मगर खुद अपने अमाल को संवारने की कोशिश नहीं करते थे। ये मंजर इस बात की याद दिला रहा था कि अल्लाह के हुक्म सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और हैबतनाक मंजर सामने आया। वहां कुछ लोग थे जिनके पेट बहुत बड़े और फूले हुए थे। वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे और बार बार जमीन पर गिर जाते, जबकि दूसरे लोग उनके ऊपर से गुजरते चले जाते। ये बेबसी और जिल्लत का मंजर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा तो बताया गया कि ये सूद खाने वाले हैं जिन्होंने अल्लाह की हराम की हुई चीज को हलाल समझा, लोगों की मजबूरी से फायदा उठाया और अपने माल की मोहब्बत में इंसाफ को भुला दिया। फिर एक मंजर ऐसा आया जहां कुछ औरतों की ज़बानें आग की कैंचियों से काटी जा रही थीं और हर बार कटने के बाद वो फिर पहले जैसी हो जाती थीं। फिजा में दर्द की कराह और हैबत थी। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि ये वो हैं जो चुगली करती थीं, झूठ फैलाती थीं और लोगों के दरमियान फसाद पैदा करती थीं। ये मंजर इस बात को सिखा रहा था कि जुबान की छोटी सी बात भी बड़े फितने की शक्ल इख्तियार कर लेती है और सच्चाई, खामोशी व भलाई का बोल ही निजात का रास्ता है। इसके बाद कुछ औरतें उल्टी लटकी हुई दिखाई दी। उनके पांव आग में थे और सिर ऊपर की तरफ बंधे हुए थे। फिजा में सख्ती और हैबत की गूंज थी। जिब्राइल अमीन ने बताया कि ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों की नाशुक्री करती थीं और बेवजह नाफरमानी करती थीं, जबकि उनके शौहर जालिम नहीं थे। ये मंजर इस पैगाम को दे रहा था कि घर के रिश्तों में कदरदानी, सब्र और शुक्र कितने अहम हैं और नाशुक्री इंसान को कितनी दूर तक ले जाती है। आगे कुछ लोग नजर आए जिनके चेहरे नोचे जा रहे थे और उनके सीने चीर दिए जाते थे। फरिश्ते उनके साथ सख्ती कर रहे थे और फिजा में हैबत तारी थी। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की इज्जत से खेलते थे, झूठे इल्जाम लगाते थे और बदनामी फैलाते थे। ये मंजर बताता था कि किसी की आबरू को ठेस पहुंचाना कितना बड़ा जुर्म है और इंसान की एक गलत बात कैसे किसी की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदूर जैसे एक गड्ढे में नंगे मर्द और औरतें देखे। नीचे से आग की लपटें उठती और वो दर्द से चीखते। ये मंजर बड़ा दर्दनाक था। जिब्राइल अमीन ने बताया कि ये जिना करने वाले हैं। ये खौफनाक मंजर इंसान को ये याद दिलाने के लिए था कि पाकीज़गी, हया और निकाह की पाबंदी समाज की हिफाजत का जरिया है और इन हदों को तोड़ने का अंजाम कितना सख्त होता है। आगे एक आदमी दिखाई दिया जिसके मुंह के एक कोने से दूसरे तक लोहे की सलाई से चीरा लगाया जा रहा था। फिर वही सलाई दूसरी तरफ से गुजारी जाती। हर बार दर्द की कराह फिजा में गूंज उठती। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि ये वो शख्स है जो झूठ बोलता था और उसकी बातें दूर दूर तक फैल जाती थीं। ये मंजर इस बात की नसीहत था कि झूठ सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि बहुतों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाला अमल है। इसके बाद कुछ लोग दिखाई दिए जिनके नाखून तांबे के थे। वो अपने ही चेहरे और सीने नोच रहे थे, मानो अपनी ही इज्जत को अपने हाथों से जख्मी कर रहे हों। जिब्राइल अमीन ने बताया कि ये वो लोग हैं जो गीबत करते थे और लोगों की आबरू से खेलते थे। ये मंजर बताता था कि दूसरों की बुराई बयान करना इंसान को अंदर से कितना खोखला कर देता है और अपनी जुबान की हिफाजत ही असल में अपनी इज्जत की हिफाजत है। आखिर में एक और दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। कुछ औरतें अपने ही बालों से लटकी हुई थीं।
उनके सिरों में सख्त तकलीफ थी, चेहरे दर्द से तड़प रहे थे और फिजा में कराहों की गूंज फैल रही थी। वह मंजर ऐसा था जिसे देखकर रूह कांप उठे और दिल अपने आप अल्लाह की तरफ पलट जाए। हर हरकत उनकी बेबसी और पछतावे की कहानी सुना रही थी, मगर वहां पछतावे का कोई फायदा न था, क्योंकि अमल का वक्त दुनिया में गुजर चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से नरमी भरी आवाज में पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन है और इनका ये हाल क्यों है? जिब्राइल अमीन ने अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में बेपर्दगी करती थीं और गैर महरमों के सामने अपनी जीनत जाहिर करती थीं। ये मंजर सिर्फ देखने के लिए नहीं था, बल्कि उम्मत के लिए एक सख्त नसीहत था कि हया और पर्दा सिर्फ लिबास नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और माशरे की हिफाजत का जरिया है, और जो इन्हें हल्का समझता है वो अपने लिए सख्त अंजाम को दावत देता है। इन तमाम हैबतनाक मंजरों को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह पर एक गहरा असर पड़ा। दिल उम्मत के दर्द से भर आया और आंखों में नमी उतर आई। आपने हर एक हाल पर अल्लाह की बारगाह में खामोशी से दुआ की कि आपकी उम्मत इन अंजामों से बच जाए। फिर जिब्राइल अमीन ने अदब के साथ अर्ज किया कि अब रहमत के सफर को आगे बढ़ाया जाए। फिजा की सख्ती धीरे धीरे हल्की होने लगी, अंधेरे की जगह नूर की लकीरें उभरने लगीं और रास्ता एक बार फिर रूहानियत की नरमी में ढल गया। जहन्नुम की हैबत पीछे छूटती गई और आसमान की तरफ जाने वाला रास्ता सामने खुलने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अब भी उम्मत की फिक्र थी, मगर रूह पर इत्मीनान उतरने लगा, क्योंकि आगे जन्नत की खुशबू और अल्लाह की रहमत की तजल्लियां इंतजार कर रही थीं। आपकी मुबारक पेशानी पर सुकून था और दिल में अल्लाह की मोहब्बत की गर्मी। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे रहमत के दरवाजे और खुलते जा रहे हों और हर तरफ से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं गूंज रही हों। पहले आसमान के करीब पहुंचते ही फिजा में एक और ही तरह का नूर फैल गया। आसमान के दरवाजों पर फरिश्तों की निगाहबानी दिखाई देने लगी और उनकी आवाजों में अदब और हैरत दोनों शामिल थे। जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़कर आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कि कौन है, तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं जिब्राइल हूं और मेरे साथ अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा हैं। ये सुनते ही दरवाजे खुल गए और फरिश्तों ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ आपका इस्तकबाल किया। जैसे ही पहले आसमान के अंदर कदम रखा गया, हर तरफ एक नई दुनिया का मंजर दिखाई देने लगा। नूर से बने हुए महल, फरिश्तों की सफ़ें और तस्बीह की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ निगाह डाली तो दिल में अल्लाह की अजमत और करम का एहसास और भी गहरा हो गया। जिब्राइल अमीन ने अदब से अर्ज किया कि ये आसमानों का पहला मकाम है और अब एक एक करके हर आसमान की दुनिया आपके सामने खोली जाएगी। ये मेराज की असल शुरुआत थी, जहां अल्लाह के महबूब अपने रब की तरफ सबसे बुलंद सफर पर निकल चुके थे और हर कदम रहमत, नूर और कुर्ब की नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जिब्राइल अमीन आगे बढ़े और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुकद्दस मकाम की तरफ ले चले, जहां एक अजीम नबी तशरीफ फरमा थे। सामने एक नूरानी शख्सियत नजर आई, जिनके चेहरे पर सुकून और रहमत की चमक थी। जिब्राइल अमीन ने अदब से अर्ज किया कि ये आपके वालिद, इंसानियत के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर सलाम पेश किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा और फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे आने से खुश हूँ। तुम उस उम्मत के नबी हो जो रहमत और हिदायत के लिए भेजी गई है। आपकी आवाज में बाप की शफकत और नबी की वकार दोनों झलक रहे थे। उन्होंने आगे फरमाया कि तुम्हारी उम्मत के नेक लोगों के चेहरे मेरे सामने रोशन हैं और उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है, जबकि जो राह से भटक जाते हैं उनके लिए तौबा का दरवाजा खुला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से अर्ज किया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमाइए ताकि अल्लाह उन्हें राह हक पर कायम रखे। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाकर उम्मत के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ की। उस मुकद्दस मुलाकात के दौरान फिजा में तस्बीह की आवाजें और भी बुलंद हो गईं। हर तरफ से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं गूंजने लगीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत के कुछ नूरानी मंजरों की तरफ इशारा किया और फरमाया कि ये वही मंजर हैं जहां नेक लोग सुकून और रहमत पाएंगे। उन्होंने उम्मत के लिए सब्र, शुक्र और तौबा की अहमियत पर नसीहत की
और बताया कि इंसानियत की असल कामयाबी अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की पैरवी में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बात को पूरे एहतराम और इत्मीनान से सुना और अपने दिल में उम्मत के लिए रहमत का एहसास और गहरा कर लिया। मुलाकात के बाद जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादब अगले मकाम की तरफ बढ़ने के लिए कहा, मगर जाने से पहले आपने फिर एक बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और उन्होंने जवाब में दुआ और रहमत के अल्फाज अदा किए। ये लम्हा ऐसा था जिसमें नबुव्वत की कड़ी अपने पहले और आखिरी नबी के दरमियान जुड़ती हुई महसूस हो रही थी। फिजा में एक अजीब सा सुकून और मिठास फैल गई और हर फरिश्ता इस मुलाकात का गवाह बन रहा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन आगे बढ़े तो पहले आसमान की नूरानी फिजा पीछे छूटती चली गई, मगर उस मुलाकात की बरकत और दुआएं साथ चलती रहीं। ये मुलाकात मिराज के सफर की पहली मंजिल थी, जिसने ये पैगाम दे दिया कि इंसानियत की शुरुआत और उसका मुकम्मल होना दोनों ही अल्लाह की रहमत के दायरे में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भरी दुआएं उम्मत के लिए एक अमानत बन चुकी थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपने रब के करम और अपनी उम्मत की फिक्र से और भी भर गया था। दूसरे आसमान की सरहदों के करीब पहुंचते ही फिजा में नूर की चमक और गहरी हो गई। जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़कर दूसरे आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सवाल हुआ कि कौन है, तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं जिब्राइल हूं और मेरे साथ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। ये सुनते ही दरवाजे खुल गए और फिजा में रहमत की एक लहर दौड़ गई। दरवाजे पर मौजूद फरिश्तों ने दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल बड़ी मोहब्बत के साथ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूसरे आसमान के अंदर मुबारक कदम रखा तो हर तरफ नूर से बने हुए महल, फरिश्तों की सफ़ें और तस्बीह की सदाएं गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर जर्रह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी मना रहा हो और जन्नत की खुशबू हवाओं में और गहरी हो गई हो। दूसरे आसमान की दुनिया पहले से भी ज्यादा रोशन और वसी थी। यहाँ फिजा में एक अजीब सी ठहराव और सुकून था जो दिल को अपनी तरफ खींच लेता था। जिब्राइल अमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुकद्दस मकाम की तरफ ले चले, जहाँ दो नूरानी शख्सियतें तशरीफ फरमा थीं। उनके चेहरों पर पाकीज़गी और सब्र की चमक थी और निगाहों में अल्लाह की इताअत का नूर झलक रहा था। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर सलाम पेश किया तो दोनों नबियों ने मोहब्बत भरे अल्फाज में जवाब दिया और आपकी आमद पर खुशी जाहिर की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, आप वो नबी हैं जिनकी आमद की खुशखबरी हमें दी गई थी और आपकी उम्मत के लिए रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। आपकी आवाज में शफकत और यकीन की मिठास थी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने भी आगे बढ़कर अर्ज किया कि आपकी उम्मत के लिए सब्र और तौबा की राह सबसे बड़ी नेमत है और जो इस राह पर कायम रहेगा वो अल्लाह की कुर्बत पाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से दोनों नबियों की बातें सुनी और उम्मत के लिए दुआ की दरख्वास्त की। उस लम्हे फिजा में तस्बीह की आवाजें और बुलंद हो गईं, जैसे आसमान खुद भी इन दुआओं पर आमीन कह रहा हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जन्नत की कुछ नूरानी मंजिलों की तरफ इशारा किया और बताया कि यहाँ उन लोगों के लिए मकामात हैं जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। उन्होंने दुनिया की फानी हकीकत और आखिरत की बाकी रहने वाली नेमतों का जिक्र किया ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये पैगाम पहुंचे कि असल कामयाबी इसी राह में है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने भी पाकीज़गी, सब्र और इबादत की अहमियत पर नसीहत की और फरमाया कि दिल की सफाई इंसान को रब की कुर्बत तक पहुंचा देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बात को अपने दिल में उतार लिया और उम्मत के लिए रहमत की दुआ की। मुलाकात के बाद जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़ने के लिए बादब अर्ज किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों नबियों को सलाम किया और उन्होंने जवाब में दुआएं और रहमत के अल्फाज अदा किए। दूसरे आसमान की नूरानी फिजा पीछे छूटती चली गई, मगर उनकी नसीहतें और दुआएं इस सफर के साथ चलती रहीं। ये मंजिल मेराज की उस कड़ी का हिस्सा थी जिसने ये पैगाम दे दिया
कि हर आसमान पर अल्लाह के चुने हुए बंदों की रहमत और हिदायत इंसानियत का इंतजार कर रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपनी उम्मत के लिए और भी दुआओं से भर गया। तीसरे आसमान की सरहदों के करीब पहुंचते ही फिजा में नूर की एक नई किस्म की चमक महसूस होने लगी। ऐसी चमक जिसमें रूह को अपनी तरफ खींच लेने वाली कशिश थी। पहले और दूसरे आसमान की हदें पीछे छूटती चली गईं और सामने एक और बुलंद दुनिया के दरवाजे खुलते नजर आने लगे। जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़कर अदब से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से वही सवाल हुआ कि कौन है, तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं जिब्राइल हूं और मेरे साथ अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। ये सुनते ही दरवाजे खुले और फिजा में रहमत की लहर दौड़ गई। तीसरे आसमान के फरिश्तों ने दुरूदो सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया। जैसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए, नूर से बने हुए महल, फरिश्तों की सफ़ें और तस्बीह की गूंजती हुई आवाजें, हर तरफ अल्लाह और उसके प्यारे महबूब की हम्दो सना की सदाएं सुनाई दे रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि तीसरा आसमान अपने महबूब मेहमान का इस्तकबाल कर रहा है। तीसरे आसमान की फिजाओं में एक अजीम नबी की नूरानी शख्सियत सामने आई, जिनके चेहरे की रौनक और हुस्न इंसानी निगाहों से कहीं बढ़कर था। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह ने हुस्न का आधा हिस्सा अता फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर सलाम पेश किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मोहब्बत की मुस्कान फैल गई। उन्होंने जवाब में सलाम दिया और आपकी आमद पर खुशी जाहिर की। उस लम्हे फिजा में ऐसी मिठास घुल गई जैसे जन्नत की खुशबू और गहरी हो गई हो और हर तरफ तस्बीह की सदाएं बुलंद होने लगीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत के लिए सब्र और पाकीज़गी की राह सबसे बड़ी नेमत है। उन्होंने अपने किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने उन्हें हर इम्तिहान में सरफराज किया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपकी उम्मत अगर सब्र, हया और पाक दामनी को थाम ले तो अल्लाह उनके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से उनकी बातों को सुना और उम्मत के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें इन खूबियों से सजाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जन्नत की उन नेमतों का जिक्र किया जो सब्र करने वालों और पाकीज़गी अपनाने वालों के लिए तैयार की गई है, ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये पैगाम उम्मत तक पहुंचे। मुलाकात के बाद जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़ने के लिए अर्ज किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सलाम किया और उन्होंने जवाब में दुआ और रहमत के अल्फाज अदा किए। चलते चलते तीसरे आसमान की फिजा में नूर के और भी मंजर नजर आने लगे। जिब्राइल अमीन ने कुछ नूरानी मकामात की तरफ इशारा किया, जहां फरिश्तों की सफ़ें तस्बीह में मशगूल थीं और जहां जन्नत की झलक साफ महसूस हो रही थी। हर तरफ सुकून और रहमत का माहौल था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ हर जर्रा अल्लाह की हम्द में मशगूल है। तीसरे आसमान की नूरानी फिजा पीछे छूटती चली गई, मगर सब्र और पाकीज़गी का ये पैगाम इस सफर के साथ चल पड़ा। ये मंजिल मेराज की उस कड़ी का हिस्सा थी जिसने ये बता दिया कि अल्लाह के चुने हुए बंदों की जिंदगी इंसानियत के लिए एक जिंदा मिसाल है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपनी उम्मत के लिए और भी दुआओं से भर गया। चौथे आसमान की सरहद पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे नूर की दुनिया और भी वसी हो गई हो। यहाँ की फिजा में एक गहरी रूहानी ठंडक और पाकीज़ा ताजगी थी, मानो हर सांस के साथ दिल को सुकून उतर रहा हो। नीचे के आसमानों की चमक अब पीछे रह गई थी और सामने एक नई ही किस्म की रोशनी फैल चुकी थी जो आंखों से ज्यादा दिल को रोशन कर रही थी। जिब्राइल अमीन ने अदब के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कि कौन है, तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ अल्लाह के महबूब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ये सुनते ही दरवाजे खुल गए और फिजा में एक नूरानी लहर दौड़ पड़ी। फरिश्ते टकटकी लगाए आपका दीदार कर रहे थे और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपका इस्तकबाल किया। जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आसमान में कदम रखा, ऐसा महसूस हुआ कि रहमत के पर्दे एक एक करके हटते जा रहे हैं और हर जर्रा अपने मेहमान के इस्तकबाल में झुक रहा है। इस आसमान के बेपनाह हसीन पर्दों में एक अजीम शख्सियत सामने नजर आई।
जिनकी पेशानी पर इबादत की लंबी रियाजत का असर झलक रहा था और जिनकी निगाहों में गहरी तफक्कुर और इत्मीनान था। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह ने बुलंद मकाम अता फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर सलाम पेश किया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूरे प्यार और वकार से जवाब दिया। उनकी आवाज में ऐसी नरमी थी जैसे किसी बुजुर्ग की दुआ, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट में रहमत की चमक थी। उन्होंने रसूल अल्लाह की आमद पर खुशी जाहिर की और फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए अल्लाह ने बेपनाह भलाई रखी है, बस उन्हें उसकी राह से जुड़ना होगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ देर गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि इंसान की असल बुलंदी उसके अमाल से पहचानी जाती है, न कि उसके लिबास या दुनिया की शोहरत से। उन्होंने इल्म, इबादत और सब्र की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि अल्लाह के करीब वही बंदे मुकर्रब होते हैं जो दिल से उसकी इताअत करते हैं। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपकी उम्मत अगर अपने आमाल को संवार ले तो आसमानों के दरवाजे उनके लिए भी खुल सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हर बात को तवज्जो से सुना और उम्मत के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें इल्म, अमल और इखलास की दौलत से नवाजे। मुलाकात के बाद जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़ने के लिए इजाजत चाही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज किया और उन्होंने जवाब में उम्मत के लिए रहमत और बरकत की दुआ दी। चौथे आसमान में कई ऐसे मंजर भी नजर आए जो दिल को हैरत में डाल देते थे। नूर से बने हुए लंबे लंबे रास्ते, फरिश्तों की जमातें जो अलग अलग कामों में मशगूल थीं, और कुछ ऐसे मकामात जहां से जन्नत की ठंडी हवाएं महसूस हो रही थीं। जिब्राइल अमीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यहाँ वो फरिश्ते रहते हैं जो बंदों के अमाल को ऊपर की तरफ पेश करते हैं, और यहाँ से बहुत से फैसले आसमानों की दूसरी मंजिलों तक पहुंचाए जाते हैं। हर तरफ एक ऐसा निजाम नजर आ रहा था जिसमें हर चीज अपने तयशुदा हुक्म पर चल रही थी और कुदरत की अजमात साफ झलक रही थी। इस खूबसूरत मंजर को देखने के बाद आप 5वें आसमान की तरफ बढ़ गए। चौथे आसमान की ठंडी पाकीज़ा फिजा पीछे छूटने लगी, मगर इल्म, अमल और इखलास का पैगाम इस सफर के साथ चलता रहा। ये खूबसूरत मंजिल याद दिला रही थी कि इंसान की असल बुलंदी उसके दिल की सफाई और उसके आमाल की खूबसूरती में है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपनी उम्मत के लिए और भी शफकत से भर गया। 5वें आसमान की हद में दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे फिजा का मिजाज ही बदल गया हो। यहाँ की रोशनी में एक गहरी नरमी थी जो आंखों से ज्यादा दिल को छूती थी। पहले के आसमानों की चमक अब दूर रह गई थी, और यहाँ एक ऐसी सादगी और वकार का आलम था जिसमें रूह खुद बखुद झुकने लगती थी। हजरत जिब्राइल अमीन ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कि कौन है, तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ये सुनते ही दरवाजे खुल गए और सामने एक नई ही तरह की नूरानी दुनिया जाहिर हो गई। लंबे लंबे रास्ते, फैली हुई रोशनियां और फरिश्तों की पुरसुकून आवाजें ऐसा एहसास दिला रही थीं कि यहाँ हर चीज रहमत और इताअत के दायरे में चल रही है। इस आसमान के अंदर पहुंचते ही एक बुजुर्ग नूरानी शख्सियत सामने आई, जिनकी दाढ़ी मुबारक सफेदी से चमक रही थी और जिनकी आंखों में शफकत की गहराई थी। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और बनी इसराइल के बड़े नबी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर सलाम पेश किया तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने पूरे पुरवकार और मोहब्बत से जवाब दिया। उनकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो दिल को आराम देती थी, और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो रहमत का पैगाम बनकर उतरती थी। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी जाहिर की और आपकी उम्मत के लिए बरकत और हिदायत की दुआ दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि इंसान को अपने अखलाक और नरमी के जरिए लोगों के दिल जीतने चाहिए। उन्होंने बताया कि गुस्से और सख्ती से दिल दूर हो जाते हैं, मगर हिल्म और सब्र से दिल जुड़ते हैं। उन्होंने अपनी कौम के साथ गुजरे हुए इम्तिहानात का जिक्र किया और बताया कि किस तरह नरमी और दुआ ने मुश्किल हालात में भी राह निकाली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें तवज्जो से सुनी और अर्ज किया कि मेरी उम्मत के लिए भी यही पैगाम है कि वो अखलाक और नरमी को अपना जेवर बनाएं। इस गुफ्तगू के दौरान
फिजा में एक खास तरह की ठहराव और सुकून महसूस हो रहा था। 5वें आसमान में और भी कई मंजर ऐसे थे जो दिल में हैरत पैदा करते थे। यहाँ कुछ ऐसे मकाम दिखाई दिए, यहाँ फरिश्ते बंदों की दुआओं को जमा करते हुए नजर आ रहे थे, और कुछ ऐसे रास्ते जहां से रहमत की ठंडी हवाएं गुजर रही थीं। जिब्राइल अमीन ने बताया कि यहाँ से बहुत सी दुआएं ऊपर की मंजिलों की तरफ भेजी जाती हैं, और यहाँ का निजाम बंदों के दिलों की हालत से जुड़ा हुआ है। हर तरफ एक ऐसा माहौल था जिसमें इखलास, नरमी और रहमत की महक फैली हुई थी, और ऐसा लगता था जैसे हर जर्रा इंसानियत के लिए भलाई का पैगाम दे रहा हो। मुलाकात मुकम्मल होने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया, और उन्होंने जवाब में आपकी उम्मत के लिए दुआ और रहमत के अल्फाज अदा किए। फिर जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़ने के लिए अर्ज किया। 5वें आसमान की ये नर्म और पुरसुकून फिजा पीछे छूटने लगी, मगर नरमी, अखलाक और दुआ का पैगाम इस सफर के साथ चल पड़ा। यह मंजिल ये याद दिला रही थी कि अल्लाह के करीब वही दिल मुकर्रब होते हैं जो नरमी और शफकत से भरे होते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपनी उम्मत के लिए और भी दुआओं से भर गया। 6ठे आसमान की सरहद पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे रोशनी की दुनिया और भी संजीदा और वजनी हो गई हो। यहाँ की ठंडी फिजा में एक अजीब सी गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें इंसान की रूह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। नीचे के आसमानों की नरमी और मिठास अब पीछे छूट चुकी थी, और यहाँ एक तरह की शान, जलाल और रब्बानी जलवा हर तरफ फैला हुआ था। जिब्राइल अमीन ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कि कौन है, तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं जिब्राइल हूँ, और मेरे साथ अल्लाह के महबूब रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। दरवाजा खुला और फरिश्तों ने दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हुए बड़ी मोहब्बत के साथ 6ठे आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। दरवाजा खुलते ही सामने एक बुलंद और वसी आलम जाहिर हुआ, जहां नूर की लहरें ऐसे बह रही थीं जैसे किसी अजीम दरिया की मौजें हों। हर तरफ एक खास तरह की खामोश अजमत छाई हुई थी जो दिल को बेइंतहा असर में ले लेती थी। इस आसमान में दाखिल होते ही एक जलील उल कदर नबी की मौजूदगी महसूस होने लगी। दूर से ही एक रौबदार नूरानी शख्सियत नजर आ रही थी, जिनके चेहरे पर जलाल और रहमत दोनों की झलक थी। जिब्राइल अमीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, जिनसे अल्लाह ने सीधे कलाम फरमाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर सलाम पेश किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे वकार के साथ जवाब दिया। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि दिल खुद ब खुद अदब से झुक जाता था। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी जाहिर की और आपकी उम्मत के लिए खैर और बरकत की दुआ की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि अल्लाह की राह में चलना आसान नहीं होता, मगर यही राह इंसान को असल कामयाबी तक पहुंचाती है। उन्होंने अपनी कौम के साथ गुजरे हुए सख्त इम्तिहानात का जिक्र किया और बताया कि कैसे उन्होंने सब्र और दुआ के जरिए उन हालात का सामना किया। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपकी उम्मत के लिए भी ये पैगाम है कि मुश्किलों में घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि रहमत का दरवाजा सबसे पहले उन्हीं के लिए खुलता है जो सब्र करते हैं। रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें बड़े तवज्जो से सुनी और उम्मत के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें इस्तिकामत और यकीन अता फरमाए। 6ठे आसमान में कई ऐसे मंजर भी नजर आए जो दिल में अजीब सी संजीदगी पैदा करते थे। यहाँ फरिश्तों की कुछ जमातें ऐसी दिखाई दीं जो आसमानों के अहम फैसलों की निगरानी कर रही थीं। कुछ रास्ते ऐसे थे जहां से रहमत की तेज और चमकदार लहरें ऊपर की तरफ उठ रही थीं। जिब्राइल अमीन ने बताया कि ये वही मकामात हैं जहां से बहुत से अहकामात और हिदायतें दूसरी मंजिलों की तरफ भेजी जाती हैं। हर तरफ एक सख्त मगर मुकद्दस निजाम काम कर रहा था, जिसमें हर चीज अपने रब के हुक्म के मुताबिक चल रही थी। मुलाकात मुकम्मल होने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया और उन्होंने जवाब में उम्मत के लिए रहमत और बरकत की दुआ दी। फिर जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़ने के लिए अर्ज किया। 6ठे आसमान की वो रौबदार और संजीदा फिजा पीछे छूटने लगी, मगर सब्र, यकीन और इस्तिकामत का पैगाम इस सफर के साथ चलता रहा।
ये मंजिल समझा रही थी कि अल्लाह की राह में आने वाली हर मुश्किल इंसान को उसके रब के और करीब ले जाती है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपनी उम्मत के लिए और भी फिक्र और दुआ से भर गया। 7वें आसमान की सरहद पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे कायनात की पूरी शान और जलाल सामने खुलकर आ गई हो। यहाँ की रोशनी में एक अजीब सी बुलंदी और ठहराव था, जैसे हर चीज अपने मुकद्दर के आखिरी मकाम पर ठहर गई हो। नीचे के तमाम आसमान अब बहुत दूर रह गए थे और यहाँ की फिजा में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें अल्लाह की अजमत का एहसास हर सांस के साथ उतर रहा था। जिब्राइल अमीन ने दरवाजे पर दस्तक दी और अपना तारुफ पेश किया। अंदर से आवाज आई कि कौन है, तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ अल्लाह के महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ये सुनते ही दरवाजे खुल गए और फरिश्तों ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। अंदर दाखिल होते ही सामने एक ऐसी नूरानी दुनिया जाहिर हुई जो इंसानी निगाहों से कहीं ज्यादा बुलंद और पाकीज़ा थी। इस नूरानी माहौल में अजीम और बुजुर्ग नबी की मौजूदगी महसूस हुई, जिनकी शख्सियत में रौब और मोहब्बत दोनों का संगम था। दूर एक नूरानी मकाम पर एक बुलंद शख्सियत तशरीफ फरमा थी, जिनके चेहरे पर अल्लाह की दोस्ती की झलक साफ नजर आ रही थी। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह के खलील। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर सलाम पेश किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और आपकी आमद पर खुशी जाहिर की। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब आने का इशारा किया, जैसे कोई दादा अपने प्यारे पोते का इस्तकबाल करता हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, आपकी उम्मत के लिए अल्लाह ने बड़ी रहमतें रखी हैं, बस उन्हें अपने रब से जुड़कर रहना होगा। उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर का जिक्र किया और बताया कि कैसे अल्लाह की इताअत और तौहीद की बुनियाद पर इंसानियत को एक क़िबला दिया गया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की कि आपकी उम्मत अगर अपने दिलों को शिर्क से पाक रखे और तौहीद पर कायम रहे तो अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराज करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हर बात को बड़े एहतराम और तवज्जो से सुना और उम्मत के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें तौहीद और इखलास पर जमा रखे। 7वें आसमान में कई ऐसे मंजर भी दिखाई दिए जो दिल में हैरत और खौफ दोनों पैदा करते थे। यहाँ बैतुल मामूर का मुकद्दस मकाम था, जहाँ हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और फिर दोबारा लौटकर नहीं आते। जिब्राइल अमीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुकद्दस घर के बारे में बताया और फरमाया कि ये आसमानों का बैतुल्लाह है, जैसे जमीन पर काबा शरीफ है। हर तरफ फरिश्तों की आवाजें, तस्बीह और हम्द की सदाएं गूंज रही थीं और ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात अल्लाह की इबादत में डूबी हुई है। मुलाकात मुकम्मल होने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम कहा और उन्होंने जवाब में आपकी उम्मत के लिए रहमत और बरकत की दुआ दी। फिर जिब्राइल अमीन ने आगे बढ़ने के लिए अर्ज किया। 7वें आसमान की वो बुलंद और अजीम फिजा पीछे छूटने लगी, मगर तौहीद, इखलास और अल्लाह की दोस्ती का पैगाम इस सफर के साथ चलता रहा। ये मंजिल ये याद दिला रही थी कि इंसानियत की असल पहचान उसके रब से रिश्ते में है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपनी उम्मत के लिए और भी दुआओं से भर गया। 7वें आसमान की बुलंदियों को पार करने के बाद एक ऐसा मुकद्दस मकाम सामने आया जहां कायनात की सारी आवाजें जैसे खामोश हो गईं। ये सिदरतुल मुंतहा का सराहाना था। सिदरतुल मुंतहा की दहलीज वो आखिरी सरहद है जहां तक फरिश्तों, नबियों और तमाम मखलूक की हद खत्म होती है और यहीं से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास सफर शुरू होता है। यहाँ की फिजा में एक ठहराव था, मानो हर जर्रा सांस रोके किसी अजीम लम्हे का इंतजार कर रहा हो। नूर की लहरें चारों तरफ इस तरह फैल रही थीं जैसे जन्नत की नदियां बह रही हों। हाथी के कान जैसे पत्तों से टपकती हुई नूरानी बूंदें रहमत की बारिश का एहसास दिला रही थीं और इसके फल बड़े बड़े मटकों जैसे दिखाई दे रहे थे। वहां की हवाओं में ऐसी मिठास थी जो दिल की गहराइयों तक उतर जाती थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये वही सराहाना है जहां तक कायनात की हर हद मुकम्मल हो जाती है और उसके आगे सिर्फ अल्लाह की बारगाह का इल्म और जलाल है।
जिब्रील अमीन पूरे वकार और अदब के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ तक पहुंचे, मगर जैसे ही इस मकाम की हद सामने आई उन्होंने अपने कदम रोक लिए। उनकी आंखों में अदब और हैरत का मिला जुला असर था और उनकी आवाज में एक गहरी खामोशी थी जब उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के महबूब, यहाँ से आगे जाने की इजाजत मुझे नहीं है। अगर मैं इससे आगे एक कदम भी बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उस लम्हे एक अजीब सी कैफियत उतर आई। जिब्रील अमीन ने सिर झुकाकर आखिरी सलाम पेश किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उस नूरानी राह पर आगे बढ़े। ये वो लम्हा था जब इंसानियत का सबसे अजीम नुमाइंदा रब्बानी कुर्ब की आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा की हद पार कर गए, नूर की दुनिया और भी बदल गई। यहाँ न कोई आवाज थी, न कोई परछाई, सिर्फ एक मुकद्दस एहसास था जो दिल को घेर लेता था। ऐसा लग रहा था मानो हर सांस में रहमत उतर रही हो और हर धड़कन में अल्लाह का जिक्र बस गया हो। ये वो राह थी जहां कदमों की आहट भी इबादत बन जाती है और निगाहों की झलक भी सजदा महसूस होती है। यहाँ इंसानी समझ अपनी हदों को छोड़ देती है और सिर्फ दिल की गहराई बोलती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अदब और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ते गए और हर लम्हा कुर्बत की एक नई बुलंदी की तरफ ले जाता रहा। ये वो सफर था जो किसी जिस्म और रूह दोनों का मेराज था। आखिर वो मुकद्दस लम्हा आया जब अल्लाह की बारगाह के दरवाजे रहमत के साथ खुल गए। ये कोई आम दरवाजा नहीं था, बल्कि वो हद थी जहां से इंसानियत की तकदीर लिखी जाती है। ये लम्हा इंसानी मंजिल और समझ से बहुत ऊपर था। वहां न कोई आवाज थी, न कोई शक्ल, न कोई रास्ता, बल्कि सिर्फ रब्बानी हैबत, रहमत और कुर्बत का एहसास था। इसी मुकद्दस कुर्बत में अल्लाह पाक ने अपने महबूब से खिताब फरमाया। ये खिताब किसी इंसानी आवाज की तरह नहीं था, बल्कि वो एहसास था जो सीधे दिल में उतरता था और रूह को लपेट लेता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अजीब सी कैफियत छा गई। आंखें सजदे की हालत में थीं और दिल रहमत के समुंदर में डूबा हुआ था। अल्लाह पाक ने अपने महबूब से फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, आप मेरे सबसे प्यारे बंदे हो और मैंने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस लम्हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी उम्मत के लिए दुआ की लहर उठी और आपने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को अपनी रहमत और मगफिरत से महरूम न करना। अल्लाह पाक ने अपने महबूब से फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी उम्मत पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल रहा हूँ और उन्हें वो तोहफा अता कर रहा हूँ जो उन्हें सीधे मुझसे जोड़ देगा। फिर नमाज का हुक्म अता हुआ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि हर दिन और रात में 50 नमाजें फर्ज की जाती हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खुशी और हैरत दोनों की कैफियत पैदा हुई, क्योंकि ये तोहफा इंसानियत के लिए रब्बानी कुर्बत की सबसे बड़ी नेमत थी। आपने सजदे की हालत में ही अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, ये मेरी उम्मत के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर ये तेरे कुर्ब की सबसे बड़ी राह भी है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये नमाजें मेरी और आपकी उम्मत के दरमियान एक सीधा रिश्ता होंगी और जो बंदा इन्हें कायम रखेगा वो मेरी अर्ज में दाखिल रहेगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के लिए उस मुकद्दस आलम से नीचे की तरफ रुख कर रहे थे तो रास्ते में छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। उन्होंने जब ये जाना कि आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की गई हैं तो उनकी आंखों में फिक्र और तजुर्बे की झलक नजर आई। उन्होंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी कौम को आजमाया है और उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आपकी उम्मत ये बोझ उठाने में मुश्किल महसूस करेगी। बेहतर है कि आप अपने रब की बारगाह में जाकर इसमें कमी करने की दरख्वास्त करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की हालत याद आई और दिल में शफकत की लहर उठी। आपने फिर से अल्लाह की बारगाह का रुख किया और अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत कमजोर है, उन पर रहमत फरमा और इस हुक्म में कमी कर दे। अल्लाह पाक ने अपने महबूब की अर्जी कबूल फरमाई और नमाजों की तादाद में कमी कर दी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब कितनी नमाजें रह गई हैं। आपने फरमाया कि अब 40 रह गई हैं। उन्होंने फिर वही मशवरा दिया कि अभी भी ये बहुत हैं, दोबारा अर्ज कीजिए। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार अल्लाह की बारगाह में गए और हर बार रहमत के दरवाजे और खुलते गए। हर बार तादाद कम होती गई, कभी 30, कभी 20, कभी 10 और आखिरकार 5 नमाजें रह गईं। ये सिलसिला इस बात की सबसे बड़ी गवाही था
कि अल्लाह अपनी उम्मत पर कितनी रहमत फरमाने वाला है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कितनी शफकत रखते हैं। आखिर में जब 5 नमाजें बाकी रह गईं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी कौम इनसे भी गाफिल रही, आप फिर अर्ज करें। मगर इस बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक अजीब सी हया और इत्मीनान उतर आया। आपने फरमाया कि मुझे अब अपने रब से और कमी की अर्ज करने में हया आती है, मैं इसी पर राजी हूँ। उसी लम्हे अल्लाह पाक की तरफ से ये पैगाम आया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 नमाजें अमल में 5 हैं मगर अज्र में 50 के बराबर हैं। मेरी बात बदली नहीं जाती। ये अल्लाह की तरफ से उम्मत के लिए बेपनाह रहमत का ऐलान था। इस तरह मेराज की उस मुकद्दस मुलाकात में नमाज का वो तोहफा अता हुआ जो इंसान को सीधा अपने रब से जोड़ता है। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि रूह की मेराज है, दिल का सुकून है और अल्लाह की कुर्बत की सबसे आसान और मुकद्दस राह है। रसूल अल्लाह का दिल इस तोहफे के साथ अपनी उम्मत के लिए और भी अर्ज और मोहब्बत से भर गया और सिदरतुल मुंतहा की खामोशी इस बात की गवाह बन गई कि इंसानियत की तकदीर में अब रहमत की सबसे बड़ी नेमत लिख दी गई है। सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी से जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी वापसी का लम्हा आया तो नूर की वो राह जो आसमानों की हदों को पार कर चुकी थी अब जमीन की तरफ मुड़ गई। वो नूरानी मंजर किसी ख्वाब की तरह नहीं था बल्कि हकीकत का ऐसा समुंदर था जिसमें रहमत की लहरें बह रही थीं। जिब्राइल अमीन अदब और ताजीम के साथ फिर से साथ आए और उन्होंने नूरानी आवाज में अर्ज किया कि ए अल्लाह के महबूब, अब आपकी उम्मत की तरफ वापसी का वक्त है। उस लम्हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक तरफ अल्लाह की कुर्बत की मिठास थी और दूसरी तरफ अपनी उम्मत के लिए फिक्र और मोहब्बत की तपिश। आपने अपने दिल में ये तय कर लिया था कि जो तोहफा आज मिला है उसे जमीन के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा। नूरानी रास्ते पर चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर सितारा, हर फरिश्ता आपको सलाम पेश कर रहा हो। हवा में रहमत की खुशबू थी और आसमान की खामोशी में एक अदब भरा सुकून उतर चुका था। जब यह मुकद्दस काफिला आसमानों की हदों से नीचे उतरकर बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर पहुंचा तो वहां भी नूर की लहरें बिखर चुकी थीं। मस्जिद अक्सा के हर पत्थर से ताजीम और मोहब्बत की खुशबू उठ रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा की तरफ निगाह उठाकर एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने दिल में उम्मत के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखा। इसके बाद बुराक फिर से मक्का की तरफ रवाना हुआ। नूरानी सवारी हवा की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और हर लम्हा मक्का की सरहदें करीब आती जा रही थीं। रास्ते में जिब्राइल अमीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के महबूब, आज आपकी उम्मत के लिए जो तोहफा मुकर्रर हुआ है वो क़यामत तक रहने वाला है। जब मक्का की वादियों के साए नजर आने लगे तो दिल में एक सुकून उतर आया। बुराक उसी मुकद्दस मकाम पर आकर रुका जहां से ये सफर शुरू हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ बढ़े तो रात अभी बाकी थी मगर सुबह की पहली किरणें आसमान के किनारे पर मुस्कुरा रही थीं। ये वही मक्का था जहां अब तक जुल्म और इनकार की आंधियां चल रही थीं मगर आज इसकी फिजा में एक नई रहमत की खुशबू घुल चुकी थी। आप अपने घर की दहलीज पर वापस तशरीफ लाए तो सन्नाटा वैसा ही था जैसा कुछ पल पहले था। न हवाओं ने अपनी रफ्तार बदली थी, न अंधेरे ने अपनी चादर समेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अंदर कदम रखा, वो बिस्तर जिस पर आप थोड़ी देर पहले आराम फरमा रहे थे अब भी हल्की सी गर्मी लिए हुए था, मानो अभी अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। कोने में रखी पानी की मश्क से कुछ बूंदें अब भी टपक रही थीं और जमीन पर गिरती हर बूंद उस अजीम सफर की गवाही दे रही थी जो चंद लम्हों में मुकम्मल हो चुका था। आपने सजदे में झुककर अपने रब का शुक्र अदा किया और अपने मुबारक दिल में ये अहद दोहराया कि ये पैगाम हर दिल तक पहुंचाया जाएगा, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सुबह का उजाला फैलते ही मक्का की गलियों में एक नई रौनक उतर आई। सूरज की पहली किरणों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने अपनी गोद से रहमत की चादर जमीन पर बिछा दी हो। रसूल अल्लाह के मुबारक दिल में मिराज की यादें ताज़ा थीं और लब्बों पर उम्मत के लिए दुआओं की सरगोशी। ये सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं थी बल्कि इंसानियत की नई तकदीर का ऐलान थी। नमाज का तोहफा, अल्लाह की कुर्बत का पैगाम और रहमत का ये सिलसिला अब जमीन पर उतर चुका था। मक्का की वो सुबह आने वाले हर दौर के लिए ये गवाही बन गई कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और अल्लाह की रहमत
हर मुश्किल से बड़ी होती है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुक़द्दस सफ़र हम उम्मतियों के लिए बड़े ही फ़ख्र और सादत की बात है, क्योंकि तमाम नबियों में सिर्फ हमारे नबी को ही मेराज की ये अजीम नेमत अता हुई। सुभान अल्लाह। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका हर एक लफ्ज़ मैंने अपने दिल की गहराइयों से लिखा है। दीन का ये सफ़र यहीं नहीं रुकेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट में अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे।